Hello, grade 5 students. I welcome you in my maths class again. In the last class, we discussed about the triangles and the types of triangles and the angles and property of triangle. Okay. Now, today I'm going to discuss about the next topic, which is circle. So, what about circle? First of all, a circle is a closed curved figure. एक सर्कल क्लोज्ड फिगर होता है कर्व शेप का, नॉट बाय यूजिंग द स्ट्रेट लाइन और द लाइन सेगमेंट्स और साइड्स. इट इज हैविंग अ कर्व line, curve shape, closed curve shape is called a circle. Okay, so what about the elements of the circle? Elements means what? Means what all things are lying inside the circle or on the circle we discuss now. So first element of the circle is the most important thing, which is the center. Center is the center point, middle point of the circle, through which we can construct one whole complete closed circle. Okay, so here in this figure you can see dot is here in the middle. A small dot is called a center of the circle. Clear? Next, in the next figure you can see here a line from center point to the boundary of the circle. Okay, this is center point again, and this is boundary, curve boundary. So the line segment from center to boundary is known as radius of the circle. Radius is the distance from center to the circle. How can we define it? Radius is the distance from center to boundary of the circle. That's all. This is about radius. Okay, so first was center and this is radius. Let's talk about the next element of the circle, which is diameter. What? Diameter. I have written here diameter. Diameter. Okay, so what about diameter? Diameter is the double of the radius. Double of radius means what? Means 2 times of radius. Radius का अगर आप डबल करोगे तो वो क्या बन जाती है? डायमीटर बन जाती है. So how can we define it? We can define like this: the distance from one point on the boundary to other point on the boundary passing through the center. In short, in easy language we can say कि डायमीटर जो होता है वो एक डिस्टेंस होता है किसका? एक पॉइंट जो बाउंड्री पर है, दूसरा पॉइंट भी जो बाउंड्री पर होगा लेकिन दूसरी तरफ होगा, और उन दोनों को ज्वाइन करने पर जब लाइन सेंटर से पास होती है, की वर्ड इज व्हाट? सेंटर से पास, पासिंग थ्रू द सेंटर, देन वी कैन से दैट द डायमीटर विल बी देयर. तो वहां पे डायमीटर वो होगी. इज इट क्लियर? एक बार मैं बुक की डेफिनेशन भी रीड कर देता हूं आपके लिए. द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर with both of its ends on the boundary of the circle is called diameter of a circle. Clear? So diameter is basically double of radius. अगर radius का एक सेंटर से लेके बाउंड्री होता है तो इधर भी अगर सेंटर से लेके बाउंड्री एक स्ट्रेट लाइन बना दी जाए, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, तो वो पूरी ज्वाइन करने पे क्या बनेगी? डायमीटर बनेगी. तो बट इट शुड बी स्ट्रेट ओनली. अगर आप एक रेडियस ये बनाते हो और एक रेडियस नीचे की तरफ बनाते हो ऐसी यहां पर, तो दैट विल नॉट बी द radius diameter, because diameter should be always straight. तो straight होना जरूरी है. Okay, so this is diameter passing through the center. Next thing is what? Chord. You can see the fourth figure. Chord. What about chord? Chord is also similar of diameter, but here it's not necessary that the chord will always pass through the center. It's not necessary. Fine, but for diameter it is necessary that diameter will always pass through the center. In case अगर कोई लाइन सेंटर से पास नहीं होती है, इन केस अगर कोई लाइन सेंटर से पास नहीं होती है बट वो सर्कल के बाउंड्री पॉइंट्स को, सर्कल की बाउंड्री पर दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, जोड़ती है, विच इज नोन एज कॉर्ड. फाइन, आप देख सकते हो एक पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है और एक पॉइंट यहां लाई कर रहा है. जब दोनों पॉइंट्स को व्हेन वी विल जॉइन द लाइन, जब हम दोनों पॉइंट्स को जॉइन करेंगे, मेक अ लाइन, हम एक लाइन बनाएंगे, तो वो लाइन क्या कहलाएगी? यहां पर कॉर्ड कहलाएगी. CHORD, कॉर्ड. क्लियर? यस, वन मोर थिंग, diameter is also known as the chord. Yes, we can call it chord of the circle. But which type of chord?
which is passing through the center. So we can call it the longest chord of the circle. Is it clear, students? Longest chord of the circle is called the diameter. डायमीटर की स्पेशलिटी ये होती है कि डायमीटर जो है वो एक कॉर्ड ही होती है, बट वो सेंटर से पास होने के कारण सबसे बड़ी और सबसे लंबी कहलाती है. फाइन. तो लॉन्गेस्ट इसलिए नाम दिया गया उसका क्योंकि वो सेंटर से पास हो रही है. दैट्स ऑल. अदर जैसे ये लाइन है, ये भी तो एक लाइन है, ये भी दो पॉइंट्स को जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है विद द बाउंड्री. बाउंड्री के ऊपर दो पॉइंट ट्राई कर रहे हैं तो वो कनेक्ट कर रही है. तो ये भी एक कॉर्ड ही है, बट ये नॉर्मल कॉर्ड है. फाइन. बट दिस इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इसलिए उसका नाम अलग से दिया गया है डायमीटर. फाइन. तो दिस इज अबाउट कॉर्ड. एक बार मैं रीड कर देता हूं. The line segment joining any two points on the circumference of the circle, I will tell you about circumference later, is called the chord. Okay, you can see here, हम इनको नाम दे सकते हैं, यहाँ पर A लिख सकते हो और यहाँ पर B नाम दे सकते हो. तो AB is the chord of the circle. You can mention there AB. XY देना है तो XY दे सकते हो. It depends on you. Okay, next element of the circle is what? Semi circle. Semi. क्रिकेट मैच में कई बार नाम सुना होगा सेमी फाइनल. मीन्स फाइनल का जस्ट बिफोर. फाइनल के जस्ट बिफोर मीन्स फाइनल का आधा. ठीक है. फाइनल होने से पहले जो उसका हाफ होता है वो सेमीफाइनल है. तो सेमी मीन्स हाफ. तो हाफ ऑफ दिस सर्कल. यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है लेकिन आधा सर्कल बनाया है, हाफ ऑफ दिस सर्कल. ओके. तो दिस इज कॉल्ड द सेमी सर्कल. Now, next thing is what? You can see the figure, circular figure here, and some points are lying there. Which all points? A, B, C, X, Y. Okay. So, can you find out the thing which is different, quite different here in this figure? There is no line segment, there is no chord, no radius, fine, no center, but some points are there. So, we can say that A, B, and C. A, B, and C are 3 points which are lying inside the circle, and X and Y are the points which are lying outside the circle. So we can say inside or outside part of the circle here. I'm trying to teach you about inside or outside means interior and exterior part of the circle. Basically, there are 3 parts of the circle. 3 parts. The first part is interior part of the circle where point A, B, and C are lying. The second part of the circle is exterior part where point X and point Y are lying. And the third part is what? Boundary. The third part is boundary of the circle. So boundary is this circular line, curved line. ये जो line है, this is the boundary. अगर इस boundary के ऊपर कोई एक point मैं बना देता हूँ यहाँ पर, सपोज करो कि यहां पर एक पॉइंट बनाता हूं मैं P point which is lying on the boundary. So we can say P is the only point which is lying on the third part of the circle, I mean boundary of the circle. So you no need to write third part, just write the boundary of the circle there. Okay. So exterior part X and Y, interior part ABC, and on the boundary point P is lying there. So this is about the interior, exterior, and boundary of the circle, parts of the circle. Okay. Now next thing is what? Circumference. Circumference, I just want to say that the distance around a circle is called the circumference of the circle. That's it. छोटी सी definition, short and sweet. The distance around a circle. Circle के around जो distance होता है उसका वो ही circumference कहलाता है. Means कहने का मतलब ये है कि ये जो circle है इसकी जो ये बाउंड्री लाइन है, अगर इसको स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं लेना, यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरा घूम के यहाँ तक का जो मेजरमेंट होगा इसका, अगर हम इसको मेजर करते तो वो जो लेंथ होगी इसकी वही सर्कमफेरेंस होगी. या फिर हम बोल सकते हैं कि यही बाउंड्री जो है वो सर्कमफेरेंस है. क्लियर? तो हाउ कैन यू मेजर द सर्कमफेरेंस? आप सपोज करो कि एक रोप है. व्हाट इज दिस? इट इज अ रोप, रस्सी. अगर एक रस्सी को, रोप को एक सर्कुलर शेप देते हो आप, फाइन, अगर वो सर्कल शेप की तो आप कुछ नहीं करना है, आपको उसको लेंथ मेजर करने के लिए आपको सिर्फ कैंची से कट करना है, सीजर से. आप अगर सीजर से कट करते हो, उसको सर्कुलर थी उसको कट करा, अब उसको आप स्ट्रेट कर लेंगे, खोल लेंगे पूरी. जब आप स्ट्रेट करके खोलेंगे तो यू जस्ट यूज योर रूलर, आप अपना स्केल लेंगे और स्केल से उसका मेजरमेंट ले लेंगे कि कितनी लंबी रस्सी है, वो 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, जितनी भी वो लंबी होगी रस्सी उतना ही उसका सर्कमफेरेंस कहलाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यू कैन फाइंड आउट और मेजर द सर्कमफेरेंस बाय कटिंग द रोप
इफ इन केस अगर रोप के फॉर्म में है सर्कल तो, अदरवाइज अगर वो प्लेन पे फिगर ड्रॉ किया गया है लाइक दिस, अगर बोर्ड पे फिगर ड्रॉ है, वी कैन नॉट कट इट, हम इसको कट नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो हम इसको कैसे मेजर करेंगे बच्चों, सर्कल को? इसके लिए वी आर हैविंग फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट सर्कमफेरेंस, बट विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास। हम उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मेजरमेंट ऑफ सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑल्सो एंड डायमीटर ऑल्सो, क्योंकि रेडियस भी हमें फाइंड आउट करनी होती है कई बार एंड डायमीटर भी हमें फाइंड आउट करना होता है। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द एलिमेंट्स ऑफ द सर्कल, कि सर्कल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या थिंग्स होती है जो हमें जानना जरूरी होती है और हम उसको बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज अबाउट द सर्कल, एलिमेंट्स ऑफ द सर्कल। वन लास्ट थिंग, आर्क। व्हाट अबाउट द आर्क? आर्क क्या होता है? ARC, ARC, आर्क। सो लेट मी क्लियर यू, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस तो पूरी होती है, बाउंड्री जो होती है सर्कमफेरेंस, उसका एक छोटा सा पार्ट। सो वी कैन से दैट अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं और एक यहां पर पॉइंट ले रहा हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं P, इसको नाम दे रहा हूं Q, तो ये P से लेके Q का जो कर्व पार्ट है, द स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट लाइक दिस, ये P से लेके Q तक का, ये दिस इज कॉल्ड एन आर्क। ये हम आर्क बोल सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि दिस इज अ आर्क। क्लियर? अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दैट लाइज बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। 2 पॉइंट है, उनके बीच में लाई कर रहा है वो पूरा सा पार्ट, दिस इज अबाउट द आर्क ऑफ द सर्कल। ओके, सो अब आर्क को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सपोज मैंने यहाँ पे PQ लिया है, तो आप यहां पर एक बीच में कोई सा और पॉइंट लेके R ले लो और बोल दो PRQ इज एन आर्क। क्या बोलेंगे? PRQ। आप PRQ कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा कर्व बना देंगे, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आर्क, PRQ। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आर्क। आर्क को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे 3 पॉइंट्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन केस अगर समटाइम्स क्या होता है कि हमें 2 ही पॉइंट दिए होते हैं, तीसरा पॉइंट नहीं दिया होता, तो हम 2 पॉइंट्स के थ्रू भी हम बोल सकते हैं कि दिस इज एन आर्क। बट ट्राई करें कि 3 पॉइंट के थ्रू ही आप, 3 पॉइंट्स के थ्रू ही आप उसको आर्क शो करेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द सर्कल। नाउ प्रैक्टिस एंड लर्न ऑल द एलिमेंट्स। आप एक बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने लेवल पे और ट्राई करें कि सब एक बार समझ तो लिए हैं आप लोगों ने, अब इसको आप खुद मन से बनाने का ट्राई करेंगे, अपने खुद ट्राई करके उसको डिफाइन करेंगे, आई मीन ड्रॉ भी करेंगे और डिफाइन भी करेंगे, क्या है इसका मतलब क्या होता है और डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कितने अच्छे से आप ड्रॉ कर पा रहे हो, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। फाइन, सो इट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। We'll discuss about some more parts of the circle like finding out radius and diameter and circumference in the next class. So thank you so much for attending today's class.